Okay. I was that some questions, the landforms, all those things. Okay, they asked some questions related to that. But overall paper was easy. Overall paper was quite easy, and I hope you solved many questions. अभी इसमें we are going to do one thing. We are going to make the analysis easier. I will ask them to make one Google form in which we will be making separate folder for each of you. Okay, we will be making separate folder for each of you, and we will be sharing that link in which the scores and how many questions you have attempted, how many questions जो हमने analysis किया है. Okay, so वो charts हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं. Okay, तो वो एक करेंगे हम. Okay, that will be the next thing we will be doing. And few questions, a few things I would like to share from people. If you got 2019 prelims paper, that would be helpful for me to analyze. Some people have shared with me. I will give you analysis today or tomorrow. Okay. Then again, other thing I would like to discuss with you. Few people here, they are in my Anthro batch, and few people who are doing their other courses of mains, continue that. Okay. If you are reading something related to mains, don't stop it. Okay, don't stop it, because your prelims was on 31st of May and you have prepared according to that. You have prepared according to that. You are according to 31st of May, and now your prelims is on 4th October. So you have already prepared everything. So don't have that fear psychosis in your mind. You will prepare everything. Okay, don't fear that. Okay. So you will be continuing with maybe 4th, 5th October, 4th, 5th August, and after that 100 थोड़ा सा प्रोपोर्शन में लेके जाएंगे. अभी 60-40 कर सकते हैं. 40% योर 50-50 कर अभी ये 4-5 दिन 50-50 करेंगे. जैसे अगस्त में जाएंगे 40% मेन, 60% प्रीलिम्स. 10th ऑफ अगस्त तक ये चलेगा. 10th ऑफ अगस्त से 15th अगस्त तक 80-20 चलेगा. 20% मेंस, 80% प्रीलिम्स. उसके बाद 100% प्रीलिम्स होगा. उस हिसाब से ये शेड्यूल डिजाइन किया गया है. ओके, बिकॉज इन द नेक्स्ट वीक वी आर कवरिंग मॉडर्न हिस्ट्री जो इजी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये डिफिकल्ट जा सकता है. ओके, तो everyone here, you must have solved your paper. We'll discuss the paper shortly, but these things I wanted you to give suggestions regarding these things, because these are also very important things. My people, my friends, I want you to focus on your study. आप ये मत सोचिए कि आपका पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है. आप पढ़ाई करिए. Don't fear prelims. Okay, that's why we have started this program. Okay, कि आपको एक prelims का जो डर है वो आपके मन से निकाला जाए. Okay, so we will try to cover each and everything related to prelims. Okay, हम जो भी कर सकते हैं हम करेंगे. My only attempt here is to get through this exam. वो करेंगे. So let's first discuss the paper. Now I hope the question paper is in front of you. Okay. So we won't be discussing all the questions, because there are some questions which are static, and I don't think in static question I have any scope. Okay, my expertise lies in स्टैटिक. तो आप भी पढ़ लोगे. माय एक्सपर्टीज लाइज इन की आप डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हो. जहां पे इट इज प्योरली नॉलेज बेस्ड, वो तो आपका भी नॉलेज उतना ही रहेगा, मेरा भी नॉलेज उतना ही रहेगा. ओके, वो तो नॉलेज में है. लेकिन मेरा अप्रोच ये है कि जहां पे आपको विदाउट नॉलेज हाउ यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन. तो हम वी वोंट बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस. वी विल गो बाय ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं वो मैं फोकस करूंगा जिससे हम कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे. जैसे एलिमिनेशन है, कॉमन सेंस जो अपना फंडा है वो हम अप्लाई करेंगे, एंड वी विल डिस्कस दोस क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने में कोई फायदा है भी नहीं. ओके, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, लोकस्ट. ओके, लोकस्ट जो है ये न्यूज में चल रहा है. ओके, आई होप यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो स्टेटमेंट नंबर 3 देख लेना. द लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड बाय साइक्लोन अम्फान इन द अरेबियन सी. आपको पता है ये जो अम्फान है, आपको भी पता है अम्फान बे ऑफ बंगाल में आया था. नाउ यहाँ पे राइट दिस डाउन. हम हर सारे पेपर से हम कुछ स्ट्रैटेजी सीखेंगे. तो आप हमेशा एक पेज आपके साथ रखिए
जिसपे what whenever say I write it down, you have to write it down, and these things you will revise one day before your exam. One day before your exam, you will revise these things. Okay, you have to revise these things one day before exam. Okay, so you have to write it down that I will read each and everything in the question. I will read each and everything in the question very carefully. ये जो एक लाइन हुई. Second लिखना, I will encircle the words which are important. I will either underline or encircle the words which are important in the question. जैसे कि अम्फान, I will underline or encircle. Then Bay of Bengal, Arabian Sea, I will underline and encircle. Why this? Why this? Again दोस्तों, हम ट्रेडिशनल जैसे क्वेश्चन पे आंसर डिस्कस करते हैं वो नहीं करेंगे, बिकॉज वो तो कहीं भी वो तो आपको कोई भी करके देगा. ओके, माय अप्रोच इज नॉट दैट. मेरा अप्रोच है कि आपको कुछ स्ट्रैटेजी सीखने को मिले उससे. समथिंग यू शुड गेट फ्रॉम दैट. ओके, तो हम ये करेंगे उसमें कि ये क्यों किया है कि आप हमने जो ये बोला था कि आई विल टॉक टू द पेपर, तो कैसे टॉकिंग करेंगे यही है. सो मैं कैसे करता हूँ. ओके, इफ आई गो एंड रीड लो प्रेशर एरिया क्रिएटेड बाय साइक्लोन अम्फान, आई अंडरलाइन साइक्लोन अम्फान. देन साइक्लोन अम्फान इन द अरेबियन सी. ओके, आई अंडरलाइन अरेबियन सी. सो दिस इज हाउ आई सॉल्व माय टेस्ट. आई अटर आउट वर्ड्स. थोड़ा सा मतलब गैप होता है, दो स्टूडेंट में गैप होता है. ओके, तो आप जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट डिस्टर्ब अदर स्टूडेंट. आप आपका चलने दीजिए. ओके, हाँ यस, वो एग्जाम हॉल का थोड़ा बहुत याद आया. एग्जाम हॉल में ये वो एग्जामिनर से दोस्ती बनाए रखना. मेरे दो भी पेपर में, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल्सो, सेकेंड अटेम्प्ट ऑल्सो, वो जो एग्जामिनर ने मुझे 1-2 मिनट एक्स्ट्रा दिए थे. She saw that I was solving very curiously in the CSAT paper, so she gave me 2-3 more minutes and she collected everyone's paper and then she took my paper. तो आप एग्जामिनर से हमेशा दोस्ती बनाए रखना. 2 घंटे में आपके एक्सप्रेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज वो थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप कैसे बिहेव करते हो उनके साथ, ये मैटर करेगा. ओके, तो ये याद रखना. सेकंड इज स्टैटिक वन. ये अर्बन फ्लडिंग देख लेना. अर्बन फ्लडिंग सबसे तो होता है, सभी से हो जाएगा. आप लॉजिक भी लगाओगे तो आप देख लेना. ओके, कोई भी ये नहीं है. अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेनफॉल वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन इंडिया. थोड़ा सा ये स्टेटमेंट नंबर में 6, 7, 8 आया है, 1, 2, 3 है. ओके, वो 1, 2, 3 है. ओके, वहां पे वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जहाँ पे सबसे ज्यादा है. देन पंजाब प्लेस एंड देन थार डेजर्ट. दैट्स व्हाई इट इज अ डेजर्ट. ओके, तो ये है. पांचवा भी इट इज इजी क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन है. हाँ, ये पेपर में ज्यादा करंट अफेयर्स है नहीं है, लेकिन इससे अभी आगे के जो पेपर आएंगे उसमें एटलीस्ट देयर विल बी 15 to 20 क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स. ओके, सो अभी ज्यादा करेंगे ये. ओके, तो ये देख लेना. तो फिफ्थ इज अगेन इजी स्टैटिक वन. देयर इज नथिंग टू डिस्कस हियर. हाँ यस, आई वांटेड टू टेल यू दिस. Can you see their explanation? They are beautifully explained each and every question. तो आप सारे एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना. जो भी आपको पता नहीं है अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना. सबसे बेस्ट हाईलाइट कर लो, हाईलाइटर से आप हाईलाइट करो. ओके, और ये सारे टेस्ट आपने रिवीजन करने हैं. मैं रिवीजन का भी टाइम टेबल दे दूंगा कैसे रिवीजन करना है. ओके, यस. Steep tabular masses dissected by rivers and winds are referred to as mesas. ये एनसीईआरटी में है, दिया हुआ है एनसीईआरटी में. ओके, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना. Then which of the following reasons may be attributed to the excessive cold in the North India during winter season? अभी यहाँ पे देख लेना. How common sense can help you here. Okay, just see this. Now continentality of North Indian region, आपको पता है continentality बोले तो it is extreme, the region which is distance from the sea, that is continentality. One is correct. Snowfall in the Himalayan ranges, it is also correct. Third, cold winds coming from the Caspian Sea. Now many people get here wrong. बहुत सारे लोगों को लगता है कि what is the relation of the Caspian Sea? So western disturbances, what is the western disturbance? Western disturbances bring the cold air from the
यूरोप टू द इंडिया, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट में रॉन्ग है। अर्ली ऑनसेट ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, अर्ली ऑनसेट ऑफ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, दोस्तों आपको भी पता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज रिलेटेड टू मानसून, इट इज नॉट रिलेटेड टू कोल्ड। तो फोर्थ भी अगर आपको आपको अगर पता भी हो गया कि फोर्थ इज रॉन्ग, देन फिर भी यू कैन एलिमिनेट ऑप्शन नंबर सी एंड डी। ऑप्शन नंबर सी एंड डी कैन बी एलिमिनेटेड बाय स्टेटमेंट नंबर 4। अभी आपको इस टाइप का एलिमिनेशन करने के लिए योर माइंड शुड बी सो मच अलर्ट। जैसे ही मुझे पता चला कि ओके स्टडी, बाय द वे आई गॉट 132 मार्क इन दिस टेस्ट, ओके, because whatever whichever so test I give you, I solved that test because to guide you, वो एक माइंडसेट क्रिएट करने के लिए मुझे खुद से सॉल्व करना होगा, तभी आई कैन गाइड यू। नहीं तो मैं तो सिर्फ आंसर एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा और वो बताऊंगा इट इज नॉट गुड। ओके, तो हर क्वेश्चन में उस जैसे आप सॉल्व करते हो, इट द डिफरेंस इज यू सॉल्व आफ्टर रीडिंग इट, आई डोंट रीड एंड आई जस्ट सॉल्व। जो भी मेरा नॉलेज है उसके बेसिस पे मैं सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। ओके, लेकिन सी माय अटेम्प्ट हियर, माय अप्रोच हियर, यही मेरा एक्सपर्टीज है कि टू रिलेट द थिंग्स, टू रिलेट द थिंग्स। Okay, you know that easterly system, it is related to the monsoon. Okay, question number 8, that is the vertical cloud with the rounded top and horizontal bases, typical of humid tropical regions. Tropical regions जैसे ही आया वो cumulonimbus cloud कुछ तो भी हो सकता है, या यहाँ पे cumulus है क्योंकि cumulus का वो वर्टिकल लेंथ वगैरह ज्यादा होता है। ओके, cumulus का। ओके, यहाँ पे बट इट इज अ फेयर वेदर्ड क्लाउड। क्यूमुलोनिम्बस हो सकता था, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स आर डार्क क्लाउड्स, बट इट इज अ फेयर वेदर्ड क्लाउड्स, सो इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू रीड ईच एंड एवरी, write this down. I will read each and every word of the question, of the options. I will read each and every word, each and every word. Okay, okay. Consider the following passage. These are the largest of all the volcanoes on the earth. These are mostly made up of basalt and hence are not steep. ये तो steep नहीं है, चलो. Conventionally characterized by low explosivity, however they become explosive some more water goes in the vent. ये तो आपको पता है. These are shield volcanoes. ये इसमें दिया है. ये volcanoes वगैरह भी दिया है अपने NCERT में. NCERT में दिया है. This is the same paragraph they have given there. यहाँ पे फिर अभी सी द एक्सप्लेनेशन। नाउ दे हैव एक्सप्लेन्ड सील्ड वोल्केनो, दे हैव एक्सप्लेन्ड कंपोजिट वोल्केनो, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस। तो आपका ये पूरे एक पेपर में आपका पूरा ज्योग्राफी कवर हो रहा है। आई विल गिव यू वन मोर टेस्ट, शायद आई हैव गिवन यू वन मोर टेस्ट। तो ये आप 2 टेस्ट सॉल्व करोगे, 2 टेस्ट में पूरा आपका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। ओके, तो ये लाइक दिस यू हैव टू डू। Statement number 10, which of the following statements are correct with reference to the sand dunes? Burchens are parabolic dunes with the points or wings directed towards the wind direction. No, ये गलत स्टेटमेंट है, ये विंड डायरेक्शन नहीं होगा, ये सीव्स का होता है। इससे सीव का विंड डायरेक्शन में होता है, बर्चन का अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके, तो यहाँ पे भी आप ध्यान से पढ़िए। ओके, विंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द विंड डायरेक्शन, तो ये आप यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ ये जो है स्टेटमेंट गलत है, सो यू विल डायरेक्टली गेट योर आंसर बी। जैसे ही एक आपको यहाँ पे माय फ्रेंड्स, माय ओनली अटेम्प्ट हियर इज टू गेट you, helping you to get through this exam, because it is very difficult to prepare for this exam for 3 attempts, 4 attempts, 5 attempts, और आपको लगता है हमेशा कि अरे यार मेरा तो 2 मार्क्स से गया, 1 मार्क्स से गया। व्हाई? आपका नॉलेज में कभी कमी नहीं पड़ रहा है, आपका नॉलेज आपको 90 95 मार्क्स तक लेके जा रहा है, लेकिन आपका टेक्निक गलत हो रहा है। दैट 10-15 मार्क्स यू आर लूजिंग बिकॉज ऑफ योर टेक्निक। तो आप यही सीखेंगे यहाँ पे। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस। तो पहला गलत हो गया, तो बाकी 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सीव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल डून्स आपको पता है। ओके, then they're coming to the next question, ग्रेविटी एनोमली। ग्रेविटी एनोमली ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।
ग्रेविटी एनोमली, ये एनसीईआरटी में भी दिया है। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। ये डिफर करता है, दैट्स व्हाई वी सी, लेट्स से कि यहाँ पे हम एनोमली बोल रहे हैं। नाउ सी एनोमली क्या होता है, एनोमली का इंग्लिश मीनिंग क्या है? चलो ये आपको पता भी नहीं है ग्रेविटी एनोमली क्या है, लेकिन फिर भी एनोमली का इंग्लिश मीनिंग क्या है? आपको इंग्लिश मीनिंग भी पता है ना एनोमली का, फिर भी आंसर आ जाएगा आपको। फॉर ऑल द क्वेश्चंस यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन द नॉलेज इटसेल्फ। ये एनोमली का भी वर्ड आज अगर आपको एनोमली का मीनिंग भी पता है ना, फिर भी आंसर आ जाएगा। इट इज समथिंग डिफरेंट, एनोमली मीन समथिंग डिफरेंट। बाकी सारे ऑप्शन में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ तो दिया है। ओके तो ये देख लेना, ये इजी क्वेश्चन है। ये पेडी प्लेन, डोलाइन, डोलाइन तो लाइम वाटर से होता है, तो आपको आंसर ये आ जाएगा। ये डोलाइन शायद लाइम वाटर से होता है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 इटसेल्फ इज रॉन्ग। नहीं सॉरी, ये गलत है, मेरा ही गलत है। डोलाइन ग्राउंड वाटर से है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट, ओके डोलाइन, ओके तो इसका आंसर है सी, 2 ओनली, 2 ही करेक्ट है। ओके पेडिप्लेन एंड पेनिप्लेन ये देख लेना। ओके ये थोड़ा सा लैंड फॉर्म्स, आई एम वीक इन लैंड फॉर्म्स। हाँ ये 13 इज गुड। 13 कितना सिंपल है देखिए। इंडियन ओशन में मानसून इज देयर बिकॉज ऑफ द इंडियन ओशन, बिकॉज ऑफ द रिवर्सल ऑफ द विंड्स। ओके सो करंट का भी वही सीन है, दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दैट करंट? one is Madagascar current is there, one is Madagascar current and another current is there, I forgot the name. What is the name of that current जो सबसे ज्यादा विंड का इफेक्ट दिखाता है? It is there in the Indian Ocean. Okay, I will tell you the name. The Manocha sir, in Manocha sir notes you will find that the name of the current. What is the name of that current? I forgot the name of, C से नाम है उसका कुछ तो भी. Okay, so that if you find it, please tell me. Okay. Okay. Question number 14. Which of the following statement is correct with reference to the Karth topography? ये सारा लैंड फॉर्म अगर आप पढ़ लेना, I won't discuss this because this is very static. Okay. हाँ यहाँ पे भी देख लेना स्टेटमेंट नंबर 15। हाँ आप सारे कोल्ड करंट सारे वार्म करंट्स कर लेंगे, ये क्वेश्चन आता है, यूपीएससी आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये भी मनोजर सर के नोट्स में है। एरमिंजर इज देयर इन द मनोजर सर नोट्स। एरमिंजर पता है आपको, आयरलैंड के बाजू में है। ओके आयरलैंड के बाजू में है, सॉरी आइसलैंड के बाजू में है एरमिंजर, तो आपको पता है। ओके तो ये एरमिंजर इज कोस्ट ऑफ अलास्का, ये गलत है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके एलिमिनेशन लगा के आ जाएगा, यू विल गेट द आंसर सी। बिग स्प्लैट इवेंट ये भी आपको पता है, मून का है। कुरोशिवा करंट, हाँ दिस इज वेरी स्पेशल क्वेश्चन। कुरोशिवा करंट, अभी आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग, इवन आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग, आई विल टेल यू व्हाई। इट बिगिंस ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड्स। ओके कोई बात नहीं, सही स्टेटमेंट है। ओके इट ट्रांसपोर्ट्स वार्म ट्रॉपिकल वाटर नॉर्थवर्ड टुवर्ड द पोलर रीजन, सही है। जो नॉर्थवर्ड मूव करेगा दैट्स मींस इट इज, आप स्टे कभी कभी यस नो कहा करो। ओके वहां पे मतलब मैसेज में तो कहा करो, सो दैट आई कैन रीड, so that I get to know that you people are listening carefully. Okay. It transports warm tropical water northwards towards the polar region. ये भी सही है। Third statement is the part of North Pacific Ocean gyre. Okay. North Pacific Ocean gyre. अभी ये भी statement सही है। Okay. तो I solved this only by the feeling of it and I got the question wrong. मुझे पता था that Kuroshio current and Oyashio current, Oyashio and Kuroshio they meet off the coast of Japan and then there is a this region, वहां पे वो it is a good region जहाँ पे cold current and warm current meet होते हैं, वो that region is good for the fishing. Okay, but this current doesn't originate at the off the coast of Japan but coast of Philippines. So this is the slightest difference. सो डोंट जस्ट गो बाय द फील। आप जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, दैट इज माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू, दैट इज माय ओनली रिक्वेस्ट टू यू दोस्तों। सी every one of you is trying very hard to get into the list.
I want you to focus. Okay, I want you to focus on each and every question. Statement number 18. यहाँ पे भी देख लेना यार. See, in India the Chota Nagpur plateau is spread over 2 states. Is it possible? झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कितने सारे स्टेट्स हैं. तो ये गलत हो गया. ईस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स ओनली. सिर्फ लॉजिक लगाइए. ईस्टर्न घाट्स चालू हो गए. उड़ीसा इज देयर, आंध्रा इज देयर, देन दिस आंध्रा इज देयर, उड़ीसा इज देयर, देन तमिलनाडु इज देयर. ओके, उसके बाद तेलंगाना है. तो सारे इसमें है. तेलंगाना मिस नहीं करना, तेलंगाना में भी है. राइट. ओके, तेलंगाना भी है. डोंट मिस तेलंगाना. ओके, यस यस. ओके, then consider the following statements. The lowermost layers of atmosphere are heated primarily by the process of conduction. ये conduction वगैरह है. सब statements correct है. सब statements correct है. Easy question. Easy question. Consider the following statements. Increase in the salinity of soil is the result of high temperature. Okay, हो सकता है. Salinity decreases the porosity of the soil and water holding capacity. ये तो सही है. Estuaries have greater salinity than the ocean currents. Estuaries have greater salinity than the ocean currents. This is wrong. Okay. ये आप लॉजिक भी लगा के आप सॉल्व कर सकते हो. व्हाट इज, ये सबसे देख लेना. ये लगून क्या होता है, estuaries क्या होता है. ओके, ये सारे देख लेना. ओके, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं. ज्योग्राफी में यही इंपॉर्टेंट है. आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ज्योग्राफी में. ओके, अभी यहाँ पे स्टेटमेंट 21 जो क्वेश्चन है, 21 जो क्वेश्चन है. अब पहले दो यहाँ पे कितना इजी है देख लेना. सिर्फ मोहागनी एंड एबोनी, मोहागनी एंड एबोनी ये सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल एरिया में आता है. ओके, इक्वेटोरियल रीजन में आता है, आपको पता है. तो आप तीनों स्टेटमेंट देख लेना. जैसे मैंने मोहागनी पढ़ा, आई अटेम्प्टेड द इक्वेटोरियल रीजन. सो whatever you are reading, read it very carefully. Your books, your question paper, anywhere you are seated. My friends, हमने जब पेपर डिस्कस कर रहे थे, हमने एनपीसीआई का भी डिस्कस किया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, तो ऐसा नहीं है कि वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन कोई बुक में आया था. वेर एवर यू आर सिटिंग, वॉट एवर यू आर रीडिंग, रीड इट केयरफुली. वॉट एवर यू आर डूइंग, हमें प्रीलिम्स में आर स्टैटिक पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so make sure that you are reading it very carefully. Okay, moving forward. हाँ, ये इसका ट्रिक है. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 का ट्रिक है. देयर आर 6 रिवर्स इंक्लूडिंग इंडस, 5 ट्रिब्यूटरीज है. तो कैसे याद रखेंगे इसको. नाउ दिस रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, रावी, बियास एंड सतलेज, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड. एंड ऊपर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चेनाब, झेलुम, इंडस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और नीचे है रावी, बियास, स्कॉटलैंड, रावी, बियास, स्कॉटलैंड. तो रावी, बियास एंड सतलज, और चेनाब, झेलुम एंड इंडस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो आपको पता है चेनाब तो नीचे आती है, झेलम पासेस थ्रू द श्रीनगर, तो श्रीनगर इज ऑन इट, आपको पता है ये. ओके, तो ये सारे ट्रिक्स भी हम पढ़ेंगे, हम मैपिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे. That's why this is very interesting. Okay, so Srinagar lies on the banks of Jhelum River. It is correct. It's correct. Okay, meandering is one of the main features of Jhelum River. ये सही है. Okay, because this क्या है वो, दाल लेक शायद it is a part of Oxbow Lake of Jhelum. ऑक्सबो लेक आपको कंसेप्ट पता होगा, तो ऑक्सबो लेक का पार्ट शायद झेलुम, दाल लेक. ओके, 23 लोकल स्टॉर्म्स, वो स्टॉर्म शावर जो समर में होते हैं उससे रिलेटेड है. मस्टर्ड का कुछ होता नहीं है. ओके, यू नो रेस्ट ऑफ द, ये एनसीईआरटी में दिया है. ओके, एनसीईआरटी में दिया है, ये इजी है. 24 अगेन इजी, आई एम डिस्कसिंग दिस. 25 ये स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट है. स्ट्रेट्स हम करेंगे, स्ट्रेट्स करेंगे सारे के सारे स्ट्रेट्स हम याद करेंगे. ओके, हॉर्मुज, ईरान एंड यूएई. अगेन ईरान एंड यूएई जो है ये करेक्ट है. बाबल मांदेब, सीरिया एंड टर्की. टर्की कहाँ पे है, सीरिया कहाँ पे है, और बाबल मांदेब कहाँ पे है. ओके, बाबल मांदेब तो नीचे है ना, दिस येमेन एंड वो क्या है, जिबूती. येमेन एंड जिबूती सोमालिया के बीच में है बाबल मांदेब.
बॉस्फोरस, बॉस्फोरस भी ऊपर है। ओके, मैगेलन, ओके, ये आप पढ़ लेना सारे, इजी है। हाँ, ये 26 ये हम करेंगे, ईस्ट टू वेस्ट सारे कैपिटल, नॉर्थ टू साउथ सारे कैपिटल, ये हम करेंगे। ये मेरे पास लिस्ट है, आई विल फॉरवर्ड दैट लिस्ट ऑन माय चैनल। ये मेरे पास लिस्ट है, आई विल गिव यू दैट लिस्ट टू यू, ओके, डोंट वरी। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जा सकता है? जैसे सी, विच लॉजिक आई अप्लाइड इन 26। अभी रायपुर, भोपाल, लखनऊ एंड जयपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ और जयपुर। अभी ये तो थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि जयपुर सबसे वेस्ट में होगा, जयपुर सबसे वेस्ट में होगा, इट इज देयर इन राजस्थान। ओके, तो ये अगर लॉजिक लगाया जाए तो वी आर लेफ्ट विथ ओनली डी ऑप्शन, वी आर ओनली लेफ्ट विथ डी ऑप्शन। जयपुर सबसे लेफ्ट में हो सकता है, तो वी आर ओनली लेफ्ट विथ डी ऑप्शन। ओके, तो ये थोड़ा सा देख लेना। ओके, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ, यस, ओके, कंटिन्यूइंग। ओके, तो डायरेक्ट आंसर है एज अजय हैज सेड। ओके, देन ये 27 ये कर लेना, सन का जो भी रिलेटेड है ये सारा कर लेना, ये क्वेश्चन में आता है, पेपर में आता है। दिस ईयर 2019 आल्सो दे आस्क अबाउट 21 जून, तो ये सारा कर लेना। 21 जून क्या है, देन सितंबर क्या है, दिसंबर में क्या है, ये सारा कर लेना, ये इजी है। ओके, ये इजी है, कर लेना ये जेलेपला, बोमडीला, बूमला, ये पासेस भी हम करेंगे, आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ पासेस आल्सो। नेशनल पार्क वगैरह भी करेंगे, आई वोंट बी डिस्कसिंग दिस, हम ये मैपिंग करेंगे, अलग से करेंगे। 38th क्वेश्चन अगेन वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। हाँ, 31 इट इज इंपॉर्टेंट, मैनग्रूव से रिलेटेड, कोरल से रिलेटेड जो भी आएगा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, मैनग्रूव, कोरल से रिलेटेड जो भी आएगा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो ये देख लेना अच्छे से। ये आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, शायद वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा है। ओके, नहीं, आंध्रा में सबसे ज्यादा है, आंध्रा, देन अंडमान, देन गुजरात, देन वेस्ट बंगाल। ओके, ये याद रखना। ओके, आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एनी एरिया डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। आपको पता है, सभी फैक्टर्स है, इजी क्वेश्चन है। ओके, वेस्ट बंगाल हैज मैक्सिमम, अभी यहाँ पे आंसर में तो उन्होंने ये दिया है, फिर भी एक बार रिसर्च करके देख लेना। अच्छा, वो सॉरी सॉरी सॉरी, इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ओके, आई आई असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो गुजरात हैज मिनिमम, देन अंडमान निकोबार, देन गुजरात, देन वेस्ट बंगाल। यस 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 यस, ओके, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, माय बैड। ओके, 33, 33, block mountains are formed by the faulting of earth's crust, block mountains are found by faulting of earth's crust, ये सही स्टेटमेंट है। एंड वॉस्जेस माउंटेन इन फ्रांस एंड विंध्या माउंटेन्स इन इंडिया आर एग्जांपल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। व्हाई ये वॉस्जेस क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल बहुत कम है, जैसे कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन इन जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक माउंटेन्स ओनली, तो ये बहुत कम है। ओके, ये ब्लॉक माउंटेन कम है, इसलिए दे हैव गिवन द ऑप्शन वाज दिस, अदरवाइज दे वुडंट हैव आस्क्ड इट, बिकॉज आपको सारे माउंटेन रेंजेस पता होंगे, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट। स्टिल इन माय वीडियो ऑन मैपिंग आई हैव कवर्ड ऑल द माउंटेन रेंजेस। 35 अगेन इजी क्वेश्चन। 36, 36 ये भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग। अभी ये तो पता है दैट कांडला कैन बी फर्स्ट, कांडला सबसे नॉर्थ में है बिकॉज इट इज देयर इन गुजरात, तो वी आर लेफ्ट विथ 3 ऑप्शंस। लेकिन मुझे लगा दैट पारादीप कैन बी दिस, मार्मागो कैन बी सेकंड, लेकिन नहीं है, मार्मागो नहीं है, पारादीप इज सेकंड, देन मार्मागो, देन विशाखापट्टनम। ओके, 1 4 2 3, विशाखापट्टनम, देन मार्मागो, मार्मागो इज लास्ट। डू वी नीड टू रिमेम्बर कंट्रीज इन माउंटेन? हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है एंडीज है, एंडीज में सारे कंट्रीज रिमेम्बर करने पड़ेंगे। आई विल टेल यू दिस, डोंट डोंट टेक एनी टेंशन, आई विल टेल यू कि कौन से रिमेम्बर करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ओके, हाँ, 38, क्वेश्चन नंबर 38।
क्वेश्चन नंबर 38 देख लेना. इंडिया हैज बोथ ऑनशोर एंड ऑफशोर नेचुरल गैस रिजर्व्स. ये तो सही है, ऑनशोर भी है हमारे पास, ऑफशोर भी है. ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का वही काम है ना. ओके, नेचुरल गैस रिजर्व्स आर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द वेस्टर्न इंडिया. आप जितना भी न्यूज में पढ़े हो, जितना भी जहां पे भी पढ़े हो, अभी कहीं पे भी आया है वेस्टर्न इंडिया. मुंबई का ऑफशोर छोड़ के, मुंबई ऑफशोर में हम पेट्रोलियम हाई है. ओके, लेकिन नेचुरल गैस के लिए हम केजी बेसिन बोलते हैं, कावेरी बेसिन बोलते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन बोलते हैं, महानदी बेसिन बोलते हैं. ओके, सो ये सारे बेसिन कहाँ पे है? ऑन वेस्टर्न कोस्ट. तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस दीजिए माइंड को. जस्ट लिटिल पुश कैन हेल्प यू सॉल्व द क्वेश्चंस. जस्ट लिटिल पुश फ्रॉम योर ब्रेन. ओके, तो दोस्तों ये लेवल का थिंकिंग चाहिए मुझे. I want you to think like this. तो हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे. ओके, तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया डेवलप्ड अंडर द ब्रिटिश पैट्रोनेज. ब्रिटिश, अभी ये तो पता है आपको, ये गलत है. ओके, करंटली द हाईएस्ट नंबर ऑफ टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ये तमिलनाडु का लॉजिक कैसे लगाया जा सकता है? आई डोंट नो यू नो इट और नॉट. ये सबसे ज्यादा हम ये, डू यू नो दैट वी इंपोर्ट द रॉ मटेरियल ऑफ द कॉटन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दिस अफ्रीकन कंट्रीज. ओके, यस, हम अफ्रीकन कंट्रीज से हम ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं एंड देन यहाँ पे तमिलनाडु में उस पे काम होता है. ओके, वी इंपोर्ट मेनी थिंग्स. ये तमिलनाडु है, याद रखना. अभी यहाँ पे सी, क्रूड ऑयल इज कैटेगरी ऑफ अनरिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट. गुड, सही है. ओके, then see the second statement. Sweet crude contains more sulfur content as compared to sour crude. Okay, this statement is wrong. आपको पता है that this BS6 norms, BS6 norms तो वही है ना. BS6 norms में हम sulfur content we are going to decrease. तो ये statement गलत है. तो ये statement अगर गलत हो जाएगा तो आपका आंसर A मिल जाएगा आपको. ओके, लॉजिक लगाइए कि why BS6 में हम सल्फर कंटेंट क्यों कम कर रहे हैं. तो यही रीजन है. ये सेक्स रेशो वगैरह, हाँ ये भी देख लेना यार. 41 इन इंडिया सेक्स रेशो इज द फेवर ऑफ द मेल्स व्हाइल द वर्ल्ड एवरेज इज इन फेवर ऑफ फीमेल्स. वर्ल्ड एवरेज इज इन फेवर ऑफ फीमेल्स. जस्ट पैट्रियार्कल वर्ल्ड है. थोड़ा बहुत लॉजिक भी लगाए तो लाइक आई थॉट दैट वे कि थोड़ा सा हम ये लॉजिक अगर रख सकते हैं that one statement can be that in because of the patriarchy थोड़ा सा हो सकता है. and in West Asia में तो सबसे ज्यादा patriarchy है. okay, I use that logic again. Let me tell you friends, your logic can be anything. Your logic can be anything. Doesn't matter. Your logic doesn't matter. Your logic doesn't matter. If you are getting the question right, then you have to apply any sort of logic. then मैंने पहले ही बोला है कि यूपीएससी के चेयरमैन आपके घर पे आके, अरविंद सक्सेना जी आपके घर पे आके नहीं बोलेंगे बच्चा यू अप्लाइड द रॉन्ग लॉजिक, नाउ यू आई वोंट बी एलोकेटिंग मार्क्स टू यू. ओके, सो नहीं, यू वोंट बी सेइंग समथिंग लाइक दैट. ओके, योर लॉजिक कैन बी एनीथिंग. करण, आपका भी लॉजिक सही है, आपका भी लॉजिक सही है. okay, then I will be discussing Khetri and Bhilwara. Question number 43. Khetri and Bhilwara are famous for copper mines. ये सही है. अमरकंटक एंड कोरपुत आर फेमस फॉर बक्साइट एक्सट्रैक्शन. अगर ये सही है, मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ने के लिए भी बोला है. और समन बोरो ये एनसीईआरटी में दिया है. 42. रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन लीड टू dilution of contaminants like fluorides and nitrates in groundwater. I don't find any reason here. Prevention of soil erosion. हम रेन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं because of something. if you are रेन हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो that water won't flow and soil erosion नहीं होगा. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. Reduction in the salt water intrusion in the coastal area. ये स्टेटमेंट क्यों सही है?
in coastal areas, because of the groundwater extraction, ये चेन्नई में हो रहा है. My question was wrong. Okay, Ajay Praja, we will discuss. Okay, a dilution of the contaminants like fluorides and nitrates in groundwater. ग्राउंड वाटर में क्यों होगा? ग्राउंड वाटर हम अगर वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो वी कैन यूज दैट वाटर. ये वाटर यूज करेंगे और ग्राउंड वाटर जो है, ग्राउंड वाटर जैसे जैसे हम डीपर लेवल्स में जाएंगे वो नाइट्रेट्स कंटेंट बढ़ेगा. फ्लोराइड एंड नाइट्रेट कंटेंट विल इंक्रीज वंस वी गो डीपर एंड डीपर इन अंडर द इन द अर्थ. इनसाइड द अर्थ हम डीपर एंड डीपर बोरिंग जो है 400 मीटर्स 400 फीट 500 फीट, उससे फ्लोराइड कंटेंट बढ़ रहा है वाटर का. ओके, सो दैट इज द लॉजिक. और समन बोरो ये एनसीईआरटी में दिया है. दीज आर द वेराइटीज ऑफ राइस. ये क्वेश्चन नंबर 45 भी देख लेना. फुटलूज इंडस्ट्री. स्टेटमेंट 3 वाज अबाउट चेन्नई. नहीं, चेन्नई नहीं है, पूरे कोस्टल एरियाज, सारे कोस्टल एरियाज में हो रहा है ये. जहां पे भी हम वाटर एक्सट्रैक्शन ज्यादा कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन में, वो साल्ट वाटर इंक्लूड हो रहा है ग्राउंड टेबल वाटर ग्राउंड टेबल में. ओके, फुटलूज इंडस्ट्रीज वर्ड से अगेन, इफ एनीबडी इज गुड एट इंग्लिश, it will be very easy for them to solve this question. Footloose industries, weight losing industries. Very good, Karan. यही है उसका लॉजिक, यही है. कॉटन इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ फुटलूज. नहीं, कॉटन का कुछ भी नहीं होता है. ओके, वेट लूजिंग नहीं है, सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू, वेट लूजिंग नहीं है ये वेट लूजिंग से ये इंडस्ट्री जिसका रिसोर्सेस वगैरह रॉ मटेरियल पे कुछ अफेक्ट नहीं होता है. दिस इज द फुटलूज इंडस्ट्री. रॉ मटेरियल रिलेशन एग्जैक्टली. शेरम्स एंड वर्लीज, आई डोंट नो व्हाट इज दिस. दिस डी लगून्स. अभी यहाँ पे भी स्टेटमेंट देख लेना. 47, in India there are confined along the western coast. आपको अगर लगून पता है, अगर ये क्या होता है, तो आपको पता चलेगा कि वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं हो सकता है ये लगून्स के लिए. वी नीड लाइक कोस्टल बीचेस. हम थोड़ा सा ज्यादा ये कोस्टल बीचेस या कोस्टल जो हम ये बोलते हैं प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, दे शुड बी ब्रॉड इनफ. और आपको पता है ब्रॉडर कोस्टल, ओके, तो ब्रॉडर जो कोस्टल प्लेन्स है वो है यहाँ पे ईस्टर्न कोस्ट पे. ईस्ट वाले जो कोस्टल प्लेन्स है दे आर वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्ट. ये आपको पता है, राइट धनश्री? वेरी गुड. ओके, नाउ देयर ओनली दिस lagoons can form, and in general the presence of salt water in these bodies make them unfit for agricultural purposes. नहीं है, ये भी गलत है. ओके, तो D you will get the answer. 48 is easy, I won't be discussing this. 49 दामोदर जैसे ही आया कोल. 46, what is 46? Sherms, Worleys, what is there to discuss? It is current, like it is a static question. Again, as I said, they ask this to check your knowledge only. Sometimes they ask the name of the tribes. Okay, don't worry. There is nothing to discuss there. Okay. Cool हो गया. The tribes are nomadic herders and food gatherers roaming around the Kalahari. जैसे ही name of the Kalahari, at least Anthro people, जैसे ही Kalahari आया बुशमैन आना चाहिए. ये थोड़ा सा कर लेना, ये कभी कभी यूपीएससी वाले पूछ लेते हैं. ओके, ये यूपीएससी वाले पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा ये सारे जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है वर्ल्ड के वो देख लेना एक बार. ओके, वो एक बार देख लेना. ओके, तो बाकी आगे जाएंगे अभी. सी ऑल्सो दे हैव गिवन मेनी नेम ऑफ द ट्राइब्स. तो ये देख लेना, उन्होंने दिए है, तो ये आप याद कर लेना सारे ट्राइब्स नेम. ओके, moving forward, describe the crop intensity. Easy question, you can apply your mind. 52 देख लेना, National Power Corporation of India. How can NPCI enter into this activity? NPCI can't. So NPCI is the wrong option. और जैसे आपको पता चला NPCI is wrong, you will get answer B. You will get your answer B.
मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, ये सरफेस माइनिंग का देख लेना। सरफेस माइनिंग इज अ चीपर वे ऑफ माइनिंग मिनरल्स दैट ऑकर क्लोज टू द अर्थ सरफेस। ये सरफेस माइनिंग में हम ये बोल रहे हैं कि हम अर्थ के सरफेस पे ये करेंगे। और स्टेटमेंट 2 कैसे करेक्ट हो सकता है फिर? ये सरफेस माइनिंग का उन्होंने करंट अफेयर्स को लिंक करके क्वेश्चन पूछा है, दैट मेघालय माइनिंग इंसिडेंट, बिकॉज ऑफ दैट दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ओके ओके, मूविंग फॉरवर्ड। Which of the following varieties of silk accounts for, ये मलबेरी आपको पता है, मलबेरी आपको पता है इंडिया में भी। मूविंग फॉरवर्ड, ये 56 अगेन इजी, आई वोंट बी डिस्कसिंग दिस। कमांड एरिया, इट इज रिलेटेड टू दिस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उससे रिलेटेड है, थोड़ा बहुत देख लेना। इरिगेशन वगैरह उससे रिलेटेड है। देन ट्रांस ह्यूमंस एनसीईआरटी में है, ट्रांस ह्यूमंस एनसीईआरटी में है। विच ऑफ द रोबस्ट, अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका, ये कॉफी के है वैरायटीज। ये यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं। These questions which they have asked, these are the questions from UPSC itself. UPSC has asked the varieties of these. Okay, UPSC has asked varieties of these. Okay, moving forward, which of the following correctly describes the factory farming? देख लेना, yes, easy है। Metallic minerals are found extensively in areas with strong tectonic activity. Strong tectonic activity. It is correct. जहाँ पे strong tectonic activity होंगी, वहाँ पे these rocks, big rocks, there will be friction in these rocks and these minerals will be generated. And second, fossil fuels are found in the abundance in rocks formed by deposition. Again, this is the correct statement. यहाँ पे which of the statement given below is not correct? नॉट करेक्ट पूछा है। तो आप दोस्तों ये भी देख लेना कि आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ये जरूर देख लेना कि करेक्ट पूछा है या नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट या नॉट करेक्ट, ये भी कंफर्म करते जाना। ओके, देन 63 इज इजी फॉर यू। सेट मेथड, रटूनिंग जैसे ही आया, ओके, शुगर केन, दोस पीपल हु ईट शुगर केन दे मस्ट बी नो दिस, रटून क्या होता है उनको पता होगा। जैसे ही रटूनिंग यू रीड 64 क्वेश्चन, दैट इज शुगर केन। हाँ, ये 65 का सबसे अच्छा है। यू नो दिस नीरू वर्ड, राइट? नीर मीन्स वाटर। यू पीपल मस्ट बी नोइंग दिस, नीर मीन्स वाटर। आई होप यू पीपल नो दिस, नीर मीन्स वाटर। तो इससे आपको आ जाएगा, आंसर ही आ जाएगा, नीरू मीन्स वाटर, तो इससे आपका आंसर ही आ जाएगा, डेवलपिंग वाटर शेड इन रूरल एरियाज। ओके, 66 with reference to thunderstorm. Actually, I didn't know that ये कार का जो स्टेटमेंट है, safer to stand below tree than to sit, okay, ये कार, oh actually I got information from this question, ये मुझे पता नहीं था। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा था। ओके, ये क्वेश्चन भी पढ़ लेना, ये नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स में फॉसिल का प्रेजेंस कैसे होगा? मेटामॉर्फिक रॉक्स ये जो है बाकी सारे इससे प्रोसेस से होता है, तो इसमें फॉसिल्स का अबंडेंस नहीं हो सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आपका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। 20th लाइफ स्टॉक सेंसस, अगेन यहाँ पे ये तो पता नहीं है, लाइफ स्टॉक सेंसस तो मैंने पढ़ा नहीं है ज्यादा। इट इज रिलीज बाय मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, हो सकता है, स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन द इंडिया हैज इंक्रीज इन द पास्ट 5 years, ये भी सही है, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, कम तो नहीं हो रही है, ये सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड, उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट लाइफ स्टॉक, लॉजिक लगाया कि इट इज द बिगेस्ट स्टेट, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन होगा उनका भी, पॉपुलेशन भी, लोगों का पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो जानवरों का भी पॉपुलेशन ज्यादा होगा। जस्ट थॉट दिस, लाइवस्टॉक पॉपुलेशन भी ज्यादा हो सकता है, जस्ट थॉट दिस लॉजिक, बट डिडंट नो एनीथिंग अबाउट लाइवस्टॉक सेंसस। तो आप कुछ ऐसा भी लॉजिक लगा के आप आंसर लगा सकते हो। विथ रेफरेंस टू कोरल ब्लीचिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कोरल ब्लीचिंग इज अ फिनोमेनन, ये तो सही है। वंस कोरल ब्लीचिंग टेक प्लेस, कोरल रीफ्स कैनॉट रिकवर फ्रॉम द लॉस, इज इट करेक्ट?
cannot recover from the loss, नहीं है. They ask this question because there are multiple attempts ongoing in the India and the world for rejuvenating this coral, right? So ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, इंडिया में this one island, this is one island, it is there at the, this one island is there at the तमिलनाडु. ये क्या है वो, तमिलनाडु में कौन सा आइलैंड है वो आइलैंड के पास में है, वान आइलैंड है. इंडिया में एफर्ट्स चल रहे हैं. ये वान आइलैंड का जो एफर्ट चल रहा है, इट इज कमिंग अंडर दिस फंड. क्या फंड का नाम है? what is the name of that fund? I forgot the. Okay, one island is in Gujarat. The name of the fund is important. Okay, जो okay, ये फंड का भी नाम मैं आपको बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट है. तो कोरल और मैनग्रूव्स वेरी इंपॉर्टेंट, you have to read them. Thermohaline circulation, again easy question. Nick Point, river terraces, rapids, okay, these are used. Very easy question. बॉम्ब साइक्लोन, ये न्यूज में था. ये बॉम्ब साइक्लोन पढ़ लेना, क्वेश्चन नंबर 72. बॉम्ब साइक्लोन ये न्यूज में था. लास्ट ईयर इट वाज इन न्यूज. लास्ट ईयर दिस बॉम्ब साइक्लोन इट वाज इन न्यूज. सो यू कैन रीड दिस. Okay, you can read this. Consider the following statement with respect to the incised meanders. Yeah, again, this is a very static question. Consider the following statements. The Earth orbits around the Sun at a uniform speed. At uniform speed, is it possible? No, right? Earth is closest to the Sun during the northern hemisphere's winter season. आपको पता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का विंटर सीजन चालू होता है मे बी समवेयर इन द अक्टूबर नवंबर, और ये 3 जनवरी को अर्थ सबसे क्लोजेस्ट होती है. ओके जो पेरिजी पे होती है सबसे क्लोजेस्ट होती है. देन एट दिस दैट इज योर 3rd of January. तो सही है स्टेटमेंट नंबर बी. 75 अगेन स्टैटिक क्वेश्चन. 76 इजी है. हार्ड रॉक्स एरिया इरोडेड बाय द एक्शन ऑफ रनिंग वाटर. मोनाड नॉक्स ये दिया है एनसीईआरटी में. अगेन 77 ये एनसीईआरटी में दिया है. दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम दैट फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स. ओके ये पढ़ लेना. ये मेंस के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. एटलीस्ट बट यू शुड नो दिस. एटलीस्ट यू शुड नो दिस. ओके ये पढ़ लेना, एक दो बार पढ़ लेना. Anticline, syncline, again that topic only. Okay, so that topic I don't like to discuss. Soil impoverishment. हाँ my friends, आप ये जो मैंने पहले भी बोला था जब हम डिस्कस कर रहे थे, अब मैंने आपको ये बोला था कि आप शंकर आय से सॉइल का और एग्रीकल्चर का टॉपिक पढ़ लेना. वो सॉइल के टॉपिक में और एग्रीकल्चर के टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, राइट इट डाउन. ओके शंकर आयस में सॉइल के और वो टॉपिक में जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, यू विल रीड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. यू विल रीड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट देयर. वो क्वेश्चन उसमें से 2 क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस, और आपके 2 से 2 आराम से आपके सॉल्व हो जाएंगे उससे. ओके ETH हुआ. रिचीज आर्किपेलागो एंड लैबिरिंथ आइलैंड, ये आपको पता है बे ऑफ बंगाल में है. The western coastal plains and eastern coastal plains meet at Kanyakumari. Okay, so this is correct. The western coastal plains are wider than the eastern coastal plains. ये गलत स्टेटमेंट है, आपको पता है. कोल्लेरू एंड पुलिकत लेक्स आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. ये भी आपको पता है. कोल्लेरू और पुलिकत कहाँ पे है आपको पता है. ओके दिस कोल्लेरू लेक एंड पुलिकत लेक दे आर इंपॉर्टेंट. थोड़ा सा ये पढ़ लेना इनके बारे में. कोल्लेरू, पुलिकत, चिलिका, ये 3-4 जो लेक है इंडिया के, ये हमेशा यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता रहता है. कोल्लेरू लेक, पुलिकत लेक, चिलिका लेक. ओके इस पे थोड़ा सा कर लेना, ध्यान देना. ये कोल्लेरू लेक कौन से रिवर के इसमें आता है? यूपीएससी हैज आस्क्ड एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस till this time related to this कोल्लेरू पुलिकत लेक. Okay 83 is again very easy. 83 is again very easy. Okay. Blocking high, static question है.
85 हम कवर करेंगे। ये मॉलिंग नेशनल पार्क जो है, हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि हम कैसे रिवाइज करने वाले हैं। ये मॉलिंग जो है देहांग दिबांग में है, ये मॉलिंग देहांग दिबांग में है। 86 इज अगेन स्टैटिक। 87 स्टैटिक। हाँ, ये 88 में भी लॉजिक देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर गिवन ईयर आर एफेमरल इन नेचर। ये सोन रिवर जो है, सोन रिवर इट मीट्स टू गंगा, और ये थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड में है, तो सोन इज नॉट एफेमरल। ओके, तो सोन आपको पता है तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं, मेरा ही गलत है। my option, my logic is wrong here. Mahi, which of the following rivers are ephemeral? Mahi river is not ephemeral. Okay, my bad. Okay, Mahi river is not ephemeral. So 88 का आंसर A है। Which of the following conditions are conducive for spreading forest fires? Forest fires. Okay, तो forest fires में long spells of hot and dry weather, correct? Presence of katabatic winds, correct? Cyclonic conditions in the lower atmosphere. Cyclonic condition आएंगे तो बारिश हो जाएगी। Cyclonic condition से फायर के लिए कोई नहीं है। Okay, these are static questions. यहाँ पे I cannot give you any logic. Okay. Solar eclipse, lunar eclipse, again very simple questions. Which of the characteristics of air mass? ये भी simple है। कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स आप अच्छे से कर लेना। कोरियोलिस फोर्स पे क्वेश्चन आएंगे। कोरियोलिस फोर्स पे यूपीएससी टेंड टू आस्क क्वेश्चन ऑन कोरियोलिस फोर्स। ओके, which of the following statement with respect to action of Coriolis force? Usually if one stands with the back of the wind in the northern hemisphere, the pressure to the left is lower than the right. Pressure to the left is lower than the right. बराबर है, because in north आप थोड़ा सा right को tilt होते हैं। An object in motion in the southern hemisphere will deflect to its left. Both the statements are correct. Okay. Island arcs, consider the following statements. They are formed, question number 95. Okay, they are formed near the subduction zone at the convergent boundary of two tectonic plates. सही है। Deep focus earthquakes and volcanoes occur frequently at the site of island arcs. सही है। Island of Japan and the Aleutian Islands are example of island arcs. Both the all the three statements are correct. Okay, so 96 is easy. Then currents. Recently, traces of plastics have been reportedly making their way to the Arctic Circle via ocean currents from the tropics. In this context, which of the following ocean currents transport warm tropical waters to the Arctic Ocean? Warm tropical water to the Arctic Ocean. अच्छा, आर्कटिक को लैब्राडोर तो नीचे आता है, तो लैब्राडोर इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी आपका एलिमिनेट हो गया। Labrador is a cold current which transports cold water from the polar region to the tropical region. Okay. Okay, 95 देखेंगे। Okay. Then Benguela current again, Benguela current तो नीचे है। Okay, Benguela current भी गलत है। Okay. Western Spitzberg current and Gulf Stream, ये तो दोनों ऑप्शन सही है। Okay. गल्फ स्ट्रीम तो है, गल्फ स्ट्रीम अगर बाकी भी कुछ पता नहीं है तो यू नो दैट गल्फ स्ट्रीम कैरीज द वार्म वाटर टू द आर्कटिक एरिया। तो 4 पता है कि आपको, 4 तो सही है, एंड यू नो दैट 1 गलत है। फिर भी 2 ऑप्शन सही है गलत है, आप अगर भी नहीं भी पता है तो लैब्राडोर इज नॉट देयर, तो ऑप्शन नंबर सी डी एलिमिनेट हो गया, एंड यू नो 4 हैज टू बी देयर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आता है। ओके, व्हाट इज 95? 95 discussed now only. Island arcs. What is the problem in 95? They are formed near the subduction zone. तो plates subduct होती है, then only the island arcs is formed. And deep focus earthquake volcano occur frequently at the site of. So where is this rim of fire? क्या बोलते हैं? That is, wow, I forgot. What do we call it? What do you call it? This rim of fire, right? It is there in the Pacific Ocean. Why? Pacific Ocean means these island arcs are formed, these Aleutian Islands, this ring of fire. So this ring of fire is there in the Pacific Ocean only. So all the statements correct. Okay. Yes, names of currents. You have to remember the names of currents.
आइलैंड्स याद रखने का आपको कोई जरूरत है नहीं, ओके। नो 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 नो, लेकिन कहाँ पे है एलुसियन आइलैंड्स आपको पता नहीं क्या कहाँ पे है? दिस हवाई, हवाई के नीचे है, हवाई के नीचे है दिस एलुसियन आइलैंड्स, ओके। तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस आइलैंड्स, ओके। ये तो पता होना चाहिए कि कौन सा आइलैंड कहाँ पे है, ओके। दिस यू शुड नो, ओके। सो वी हैव डिस्कस द फर्स्ट पेपर माय फ्रेंड्स। आपका अप्रोच आपको पास करवाएगा प्रीलिम्स। आपका नॉलेज जो है आपको 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स तक लेके जाएगा, लेकिन आपका अप्रोच आपको 10-15 मार्क्स ज्यादा देगा। तो आपका अप्रोच हम यहाँ पे करने आए हैं। पीपल हियर दे गॉट 80 मार्क्स, 80 प्लस मार्क्स सबको है, 85 90 सबको मिल रहा है, ओके। लेकिन बिकॉज यू आर फेलिंग इन योर अप्रोच, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स, okay. So that's why we have started this. We will work on each and everything here. We will work on each and every parameter, each and every parameter, so that you clear this exam, so that you clear this exam, okay. So I hope it helped you. So I was talking about the mapping. तो मैपिंग हम ऐसे करेंगे कि आप लोगों का मैं ग्रुप फॉर्म करूंगा और आप लोगों को एक ग्रुप टास्क दिया जाएगा। आप एक दिन में 5 स्टेट डिस्कस करेंगे। आप आपका खुद का टेलीग्राम, अभी आप खुद से आप स्काइप ज्वाइन करेंगे, ओके। I won't be whether I'll be monitoring that, or I won't be, sometimes I'll be joining, sometimes I won't be joining. So from next week we are going to start the group activity. हमें ग्रुप एक्टिविटी चालू करना है। सो आई वांट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट इक्वली, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इक्वली, सो दैट देयर कैन बी वेरी गुड डिस्कशन, ओके। Okay, so I want everyone to participate in those discussions. I want everyone to participate in those discussions, and by that discussion we will cover the mapping. I will tell you how to cover the mapping. I will tell you how to cover the mapping, okay. मैपिंग में हम हर दिन 5 स्टेट्स करेंगे, ओके। 5 स्टेट भी करेंगे तो पूरे कल अगले वीक में पूरा मैपिंग हमारा हो जाएगा। तो 5 स्टेट हम जब डिस्कस करेंगे, आई वांट वन स्टूडेंट टू टेल मी the national park of every state, okay. And then I want one student to tell me Ramsar sites, I want one student to tell me biosphere reserve, I want one student to tell me these other sites, okay. हम एक करके now everyone will get this task, okay. हम सब में डिवाइड करके हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, ओके। सो लेकिन मेक श्योर दैट व्हेन वी आर रिवाइजिंग दिस यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मैप, मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मैप। तो एक वीक में हम पूरा इंडिया का मैपिंग कवर कर लेंगे, पहली बात। एक वीक में हम पूरा इंडिया का मैपिंग कवर कर लेंगे, अगले वीक में हम वर्ल्ड का मैपिंग कवर कर लेंगे। मैपिंग के 5 क्वेश्चन तो आपके जाने ही नहीं चाहिए। हम we will cover everything, seas of the world, straits of the world, then these all the important rays, then mountain ranges, then rivers of the world, rivers of India, then everything, every important thing we will cover under the mapping. But I want your cooperation, because you will be doing it, I'll be just helping you out to how to do it, okay. तो हम करेंगे ये अच्छे से, okay. So anybody want to ask any question? Any question? Any question if you want to ask? I'm waiting for your any question if you want to ask. Okay, so nobody has. Yes. Okay. So yes, I want you to solve your test. What is average score for test? Let me check. Let me check. Okay. Okay. We will be soon. What is average score of test? यहाँ पे okay. Okay. Yes. Yes. वो भी देना है ना? I forgot. Oh yes. Yes. Karan, it is better. You told me. Yes, हम दो, that's why I told you I'll be giving one test जो हमारे इंस्टीट्यूट का होगा, and I'll be giving you 2 more tests, okay. Yes, I'll be giving you 2 more tests, but let me tell you Jamir, let me tell you Jamir, आप 50 टेस्ट सॉल्व कर लो, कुछ फायदा होने वाला नहीं है। if you are not analyzing those tests then you won't pass. So
सेंड मी योर क्वेश्चन पेपर। आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है, मैंने कुछ लोगों को दिया है, आई विल टेल यू हाउ टू एनालाइज। तो आपको मैं एक टेस्ट का एनालिसिस दूंगा, तो आप सारे टेस्ट आप खुद से एनालाइज करोगे फिर। ओके, सो यू हैव टू सेंड मी द क्वेश्चन पेपर, आपने कैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। ओके, आई वांट टू सी यू हाउ यू एलिमिनेट एलिमिनेशन, आई वांट टू सी हाउ यू एलिमिनेट अ सिंबल्स। ओके, एवरीथिंग। ओके, सो टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री के हमारे सोर्सेस दो रहेंगे। वन इज आर बिपान चंद्र, अनदर इज आर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम एंड बिपान चंद्र, स्पेक्ट्रम एंड बिपान चंद्र। तो यहाँ पे मेन टॉपिक्स, आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आई विल पोस्ट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भेज दूंगा, वो टॉपिक आपको याद ही करना पड़ेगा। एवरी डे यू हैव टू रिमेंबर दोस थिंग्स। ओके, तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का नोट्स तो मैंने डाला है। ओके, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह आपको खुद, आप ग्रुप, अभी आपको मैं दूंगा, ग्रुप टास्क दूंगा, क्या करना है, कैसे करना है, आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। ओके, वीकेंड सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स, वो सारा बहुत इजी है, इट इज वेरी इजी, यू डोंट वरी, यू डोंट वरी। धनश्री, यस, थोड़ा सा बिपान चंद्र से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू टू देन रीड इट। ओके, एक तो ये बात है। कोई भी आप किस में भी वीक हो, आप डरिए मत, आई विल टेल यू हाउ टू कंप्लीट इट। आई विल सेंड यू ऑडियो नोट्स, आई विल सेंड यू ऑडियो नोट्स। ओके, कैसे करना है आई विल टेल यू। देन मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा, तो आई विल सेंड यू ऑडियो नोट्स, बेसिकली आई विल सेंड यू ऑडियो नोट्स। विपान चंद्र का एनसीईआरटी एंड बुक सेम है। Okay. So Karan, I will send you people audio notes. So I'm speaking. I took one session before. Before this session, I had another session of the Skype. Okay. So I'm little bit of tired. Okay, don't worry. I will send you audio notes and I will send you some written material. Okay. So I hope everyone is doing fine. Whatever problem you face in your preparation, I am here for you. But it is your responsibility to ask me any doubt. Okay, again I am telling you my number 7350227980, 7350227980. If you have any problem, you can message me. Okay, so people, goodbye. Okay, take care, stay safe. Okay, take care, bye.